Are you aware that you're in a love triangle situation? This person was being very devilish. This person was being dishonest, wearing fake masks, and they are somebody, and there is a presence of someone who is a happiness hater, and that is your friend itself. So, to know more, continue to watch this video. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So today's topic is all about the third party update. जो जिनको पता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये सिर्फ उनके लिए है, एंड जिनको डाउट है कि शायद इसके फ्रेंड के साथ इसका चक्कर चल रहा है, all these things, then it is for you guys, okay? If not, and don't have any kind of doubt, but don't welcome the doubts in by watching this. So who has and who are sure that your person is in a third party situation, this is only for those, and no taking any serious action on basis of this, because it's a very general collective reading. Just take what resonates, don't try to fit in, okay? So yes, so this time it's gonna be a pick a pile reading as always. तो इधर आपको मैं 2 पाइल दूंगी, स्क्रीन पे शो होगा, एंड यू कैन पॉज, फिर आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा पाइल सही है. अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल देखने का भी मन कर रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन गो वॉच. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस इन वॉचिंग एनी ऑफ द पाइल्स, बट जो आपको गट फीलिंग दे रहा है कि हाँ ये मेरा हो सकता है, या you know right what I've always been saying you how to select your piles, all this. So pause karo, time लो and pile choose करो, then we'll get into the reading. टाइम स्टैम्प्स डाल के रखूँगी मैं, तो आपको जो भी आपने पाइल चूज़ किया है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ओके? एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा अकाउंट विच इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. And yeah, for a while I'm not seeing the form that I have put up. Please don't go through that, okay? I'll be bringing up the new link for it. Till then, you can contact me on my Insta page for more such detailed reading with a very reasonable prices, guys. It's not gonna be expensive like anybody else, so it will be very affordable, so you don't have to worry. And let's get started. तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे चल रहा है, एंड क्या आ सकता है आगे जाके, ये थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है इस केस में, एंड आपके लिए थॉट्स क्या है. सो इन डेप्थ रीडिंग होने वाला है. जैसे गाइडेड आंसर्स मिलेंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर जैसे नहीं है, ओके? So that's it, and let's directly get into the reading. You take your time to pause the video and choose the pile that will be coming next, okay? Bye bye. Hello, whoever has chosen pile number 1, so this pile is for you, this reading is for you. चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कैसे चल रहा है. Is it going good or not? Think of your person, take their name 3 times, and then let's see. My spirit guides, please let me know how is the situation between my viewers, person and the third party. ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ है इनके साथ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बिकॉज आई हैव गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके? तो स्टेबिलिटी नहीं है उनके रिलेशनशिप में, बहुत छोटी मोटी चीज़ों में फाइट्स हो रहे हैं इन दोनों के बीच में. एंड आई सी दैट जो भी वो लड़की है, द लड़की और लड़का, whoever the third person is over here, I see that this person is very egoistic, stubborn, and who likes to have fame, recognition, and they're not that oriented person जैसे इनको चाहिए था. वो the face, that affection, that physical attraction, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में. यही इसके लिए ही हो रहा है बस.
सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए हो रहा है, इंटीमेसी के लिए हो रहा है, इसके अलावा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर. इट्स ऑल अबाउट वांट्स वांट्स वांट्स. तो पूरे कार्ड्स वांट्स है इधर और कोई कप्स कार्ड नहीं है. तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, यू नो, और इंटीमेसी के लिए है, लुक्स के लिए है. उसके अलावा कुछ डीप इमोशंस हो या क्या बोलते हैं आपका लॉन्ग टर्म इंटेंशन हो, ये इनके साथ नहीं है. ना ही वो थर्ड पार्टी यू नो इनसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज दैट थर्ड पार्टी इज ऑलरेडी गेनिंग फेम, रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल. दैट थर्ड पार्टी कुड बी इन समथिंग यू नो इनटू बिग, लेट्स सी, और शी कुड बी अ पॉपुलर गर्ल या कुछ ऐसे कुछ तो है जिसके वजह से आपके पर्सन उनके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे. As always, I forget to see. So I see it's just a flirtatious energy right now उनके बीच में with this ace of page of cups. ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है. What are third party's intention towards your person? Angels, oops, there's so much things to say, but yeah, please give me a correct. Guys, please let me know what are the third party's intentions for me. बोला ही था क्लोज्ड ऑफ, नॉट इमोशनली अट्रैक्टेड, इसमें वही लिखा है. And toxic, destruction, relationship, manipulative, gaslighting. So this is all about, you know, this relationship is being more toxic. ये रिलेशनशिप जो है इन दोनों के बीच में इतना टॉक्सिक हो रहा है कि यू नो मैनिपुलेट हो रहे एक दोनों, यू नो, एक दूसरे के लिए. एंड अगर उनको आपके पास आना है, शायद वो कभी कभार कन्फेस भी करते होंगे कि आपके पास आना है, बट ये बहुत मैनिपुलेटिव फीमेल है. शायद आपका बंदा या बंदी जो भी हो could be very nice or could be good looking or could be having a very really rich background or wealthy background. So उनको वो फ़ायदा उठाना है उनका, एंड उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. और they could be good at you know good on bed. So this is the reason it's all about you know this person holding on to them even though there is nothing left to continue. पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन विन सिचुएशन. सो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला है, इन दोनों के बीच में कोई विन विन सिचुएशन नहीं है. बैड हैबिट्स है, बैड पैटर्न्स है, बहुत टॉक्सिक है ये दोनों एक दूसरे के लिए. बहुत मतलब यू नो कि पता है कि इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अगर फिर भी कोई और आके इनको अप्रोच किया तो इनको गुस्सा आ जाता है बस कि नहीं, इससे बात मत करो, ये मेरी है, जिधर की है ही नहीं, फीलिंग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही इसके साथ कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है. So that is what is going on with, because the third party is doing it, and at the same time I feel that कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं इधर. चलिए देखते हैं आपके पर्सन का थॉट्स क्या है आपके लिए. इधर मेरे को लगता है कि आपके पर्सन ये बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं. शायद आप इनको रीच आउट करने के लिए ट्राई किए होंगे, या इनके दोस्त लोगों ने बहुत बोला होगा इनको कि जो भी तू कर रहा है बहुत गलत कर रहा है. गेट बैक टू द पर्सन दैट यू आर विद. यू डोंट यू नो डिजर्व टू बी विद दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू. बट ये जो है इस बहुत कोल्ड हार्टेड हो गए हैं कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, या यू नो कुछ चीज़ों के वजह से दे हैव स्टिल केप्ट दैट इन माइंड आपके बारे में. ठीक है, आई सेंस कि कुछ तो बात आपने बोली है जो बहुत कड़वी थी, दैट उनको वो बहुत हर्ट हो गया था, उसके वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन इधर उधर होने लगा. एंड दैट इज़ व्हेन दिस थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट करके इनको अपने पास ले लिया. बट ये अभी ना आपके वैल्यू, आपके वर्ड्स समझ पा रहे. You are like a princess. You are like a
क्या बोलते हैं, you have been seen on the top for him now. Your value is being seen, he's respecting you now, he is getting to know your worth, कि हाँ इन्होंने जो भी किया है गलत किया है, ठीक है. इनको आपके पास आना है बट एनर्जी बहुत स्लो दिख रहा है मेरे को. शायद इनका करियर के कुछ इश्यूज भी हो रहे हैं, कुछ शायद ये आपसे बहुत दूर है अभी फ़िलहाल के लिए. तुम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है. नॉट फॉर एवरीवन बट डेफिनेटली आई सी दैट दिस पर्सन, फॉर मेनी ऑफ यू, दे हैव बिकम वेरी कोल्ड हार्टेड टुवर्ड्स यू. Though you tried confessing them, you might have, some people, I don't know why I'm getting this, that you have put a spell about thoughts, like let them think about you, let them get attracted to you back. So शायद कुछ इधर जो लोग हैं, आप लोगों ने स्पेल्स डाले अपने बंदे के ऊपर कि आपके पास आ जाए, आपके बारे में सोचे, थॉट वाला वो स्कल स्पेल्स एंड ऑल. बट उनको आना है, ठीक है, ज़रूर आना है उनको आपके पास, डेफिनेटली आना है. बट वो फ़िलहाल के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे इधर, ठीक है. बट आई फील दैट मोस्ट ऑफ यू can expect this person coming towards you, and you might have been manifesting for this person. You might have been asking universe to show you sign that this person is going to come towards you. So most of you might be seeing butterflies, okay, or feathers or angel numbers as a sign that this person is going to come back to you. जो लोग भी बटरफ्लाइज देख रहे हैं, जो लोग भी किसी दोस्त के साइड से अभी अपडेट क्या है, वो क्या है, ये क्या है, जानने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बंदे हैं जो बहुत अभी कोल्ड हार्टेड है एंड आपके साइड कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है. देखते हैं व्हाट आर हिज थॉट्स रिगार्डिंग टू द थर्ड पार्टी के लिए इनका थॉट्स क्या है, देखते हैं. देखो थर्ड पार्टी के लिए इस फीलिंग इट्स वेरी कंट्रोलिंग, इट्स वेरी टॉक्सिक. जैसे मैंने इधर बोला था आपको कि इनको बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एंड ये मेजर कार्ड से जो गिरे हैं गाइस, ये मेजर कार्ड से इनके बीच में कोई प्यार हो यार कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन है. और ये बंदी जो भी है, बंदा और बंदी जो भी है, थर्ड पार्टी इज़ वेरी कंट्रोलिंग एंड ये इनको पसंद नहीं आ रहा है. ये उधर से निकलना चाहते हैं, भाग के निकलना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू कम आउट, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, बट बहुत डिले हो रहा है. बट आई सी दैट दे विल मेक द वे टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ मार्च. ये बहुत लोगों के लिए है. शायद उनका बर्थ डेट 4 होगा या 7, 13, 14, 3, 8, जिनके भी बर्थ डेट्स है, या इधर आपका हो या उनके हो, जो भी रेजोनेट हो रहा है इसमें से, तो वो आएंगे आपको मार्च में, ठीक है. कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, देन एयर साइंस, ओके. जिनका भी जोडियाक्स हो इधर, अगर ये जोडियाक्स जो मेंशन किया है आपको रेजोनेट कर रहे हैं, तो देन दिस पर्सन इज गोना कम इन द मंथ ऑफ मार्च, okay. I see that they want to just leave this person off and come, because it's being very dominating energy, very toxic energy, and that person is manipulating your person very badly, that they are able to understand now. They are literally able to understand कि हाँ ये बंदी या बंदा मेरे को बहुत manipulate कर रहा है, so I don't want to be there. मेरे को निकलना है इसके relationship से, इसके controlling इससे. So I definitely see them making a way towards you. They are definitely going to come towards you with a new rebirth, a new transformation. And ये गलती फिर से वो नहीं करेंगे जो भी आएंगे तो. So I see that उनके लिए कोई emotions नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो भी है वो आपके लिए है. But
अभी बस वो कंट्रोलिंग और वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे। तो मैं जो लोग अभी सोच रहे स्पेल कराना है कि नहीं, तो मैं उनके लिए यही एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्पेल्स। अगर चाहिए तो आप हीलिंग करो उनके लिए, या हीलिंग सेंड करो, या नेगेटिविटी बैनिशमेंट करो, ताकि वो मैनिपुलेशन से हट जाए और आपके पास आ जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, उनको क्लैरिटी मिल जाए। ऐसे कुछ चीज़ करो। आप भी ऐसे फोर्सफुली अट्रैक्शन वाला स्पेल्स वो ये कास्ट मत कराओ, ठीक है। Let's see what are your person's next action towards you. Oh, this is so sweet. I feel that this person wants to, अगर आप लोग का long distance चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, कुछ भी हो, but they want to travel, they want to come back to you because they are missing that comfort, that care, that, you know, that safer side, and being respected, being, you know, valued by somebody. They're missing all these things, this precious things. They've learned this lesson. ये कार्मिक फेज जैसे हो गया कि शायद आप बहुत कुछ दे रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बट इन्होंने कभी आपके लिए वो तारीफ नहीं किया, क्या आपके एफर्ट्स को कभी एनालाइज नहीं किया, या आपके एफर्ट्स को कभी, you know, they never valued your efforts basically. But now I see that they want to travel and come back to you. This person majorly want to do this. They are just being careless right now. They don't know what to do. They are pretty much feeling stuck in the situation because ये इतना टॉक्सिक और इतना कंट्रोलिंग हो गया है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, ठीक है। And I do see that they are into now very bad habits, or you know, they're into something, you know, addicted to some things. शायद ये इतना नहीं थे पहले जब, you know, आपके साथ थे तो, but अभी I see that they are lot into this. They are lot into being very addictions, पीना हो, smoke करना हो, सब कर रहे। So this person have literally spoiled them from what they are. They just changed them literally. चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है इसमें. What else is going to happen next? I've got third party. There were other things that got in the ways of us being together. So they are saying that this is the message that they know what they have done. They regret going to this third party situation. Third party reading में third party card आ गया. सोचो guys. So they have been regretting. They know that they went into a wrong stream, you know, wrong ways, which they must have not gone. But you know, they haven't told you everything. There are a lot of you know, hidden secrets that they want to say. ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड दे विल डेफिनेटली शेयर इट टू यू. यू विल डेफिनेटली गेट टू हियर इट आउट फ्रॉम देम. आई सी देम लिविंग दिस थर्ड पार्टी, you know, off and coming back to you. This third party is gonna get hurt very badly because she was using them and now no more. She was having a lot of benefit from this person, and now they know that I always feel connected to you. They know that you are their soul tie. They know that you are their soul contract person. So they know that there is something in you that is being pulled towards you. Okay, so they feel that connection now. They are coming back to you. So जो भी सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा बंदा अभी नहीं आने वाला है, गया वो हाथ से, बट नो, डोंट वरी गाइस, आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे और उन थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे. एंड आपको जो लगता है ना थर्ड पार्टी ने ये जो ये किया है, उनको ठीक से उनको सज़ा तो मिलेगी, बिकॉज उन्होंने बहुत गलत किया आपके पर्सन के साथ, एंड आपके पर्सन अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, एंड दे आर गोइंग टू literally close off things with them and come back to you. But I would say you to please do healing for them so that they don't come in any kind of negative ties and that doesn't affect your relationship.
So let's see what guidance that my spirit guides would like to give for this thing. So guys, please let me know guidance you would like to give for my person. Loving and fighting. So this keeps happening in everybody's relationship. I was saying you heal, heal, heal. So see this, loving and fighting. This keeps happening in everybody's relationship. But all you need to do is forgive and forget the bad faces and not keep it, and make an tape record of like dig, 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 which will heal, which will affect your healthy boundaries and your thoughts and everything. And there is heal. अब मैं आपको बोल भी रही हूँ कि healing कराओ, heal was coming, and heal is definitely has come over here कि आपको healing की सख्त ज़रूरत है, और उनको भी है, because आप दोनों ना बहुत traumatic phases से गए हो. ठीक है, उन्होंने आपको चीट किया तो उधर जाके उनको ट्रॉमा मिल गया, आपको इधर ट्रॉमा मिल चुका है, एंड कहीं ना कहीं आपको इधर होप्स भी था कि वो आएंगे आपके लिए, तो वो ज़रूर आने वाले हैं. और आप दोनों के बीच में कनेक्शंस है, आप दोनों को स्पिरिचुअल कनेक्शन है. एंड जिनको भी कंफ्यूज थे कि अगर मेरे को इनको छोड़ के मूव ऑन करना है कि नहीं रुक जाओ मार्च तक, वो आपके लिए आने वाले हैं. एंड जैसे मैंने आपको साइंस, ज़ोडिएक साइंस वगैरह जो भी मेंशन किया, बर्थ डेट्स मेंशन किया है, इसके हिसाब से अगर आपका रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली मार्च के अंदर ही आपके पर्सन आ जाएंगे. सो डोंट नीड टू वरी. दिस इज़ ऑल दैट मैसेज आई हैव आफ्टर अ लॉन्ग विद द थर्ड पार्टी अपडेट, दैट कि ये बार फाइनली दे आर रियलाइजिंग दैट वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग, एंड बहुत मेजरली बहुत टॉक्सिक लेवल पे चीज़ें हो रही है कि उनको अभी सहन करने को हो ही नहीं रहा है. दे वॉन्ट टू जस्ट कम बैक टू यू, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू. यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व. सो दैट्स ऑल गाइज. अगर ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बोलो कि अगर रेजोनेट हुआ है कि नहीं. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा. द लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन गाइज. सो लव यू ऑल. बाय बाय. कीप सपोर्टिंग मी द सेम. Hello my dear pile number 2. So let's get into your reading. चलिए देखते हैं. पहली बात तो आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पर्सन और दैट थर्ड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसे चल रहा है. Close your eyes, think of your person, take their name 3 times, and let's see. Guys, please let me know what's going on in my viewers person's third party situation. हो. लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन मतलब आपके दोस्त होंगे या आपके पर्सन के दोस्त होंगे, एंड ये फ्रेंडशिप से चालू हुआ है कुछ. तो जो भी थर्ड पार्टी ये फ्रेंडशिप से ही मतलब किसी ने इंट्रोड्यूस किया हो, या आपने अपने दोस्त को अपने पर्सन से इंट्रोड्यूस किया हो, या आपके पर्सन के ऑलरेडी जो फीमेल या मेल फ्रेंड है उनके वजह से हुआ. एंड दे आर वेरी वेल्दी पर्सन. They have been gifting your person so much, though they know that that person is in the relationship. They have been gifting them all the things, wo ye and all. And इधर रिलेशनशिप भी चालू हो गया था, ठीक है, बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है. रिलेशनशिप मतलब प्यार में आ गए थे लोग, बट कन्फेशन नहीं है, या ना ही रिलेशनशिप मतलब एक्चुअल रिलेशनशिप कुछ नहीं चल रहा है. ठीक है, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ना आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर शक है कि शायद इसका दोस्त एंड ये दोनों का कुछ तो चल रहा है. आई फील दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू ओवर हियर. एंड ये मेरे को वही वाइब्स दे रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, या कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है बिकॉज विद दिस एस. या कुछ लोगों के लिए चालू हुआ होगा और आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में आ गए होंगे समझ के, या पता चला होगा आप लोगों को. एंड इधर एक्चुअल में
स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, प्यार व्यार एंड ऑल, बट मेरे को लगता है जब ये आ गए दोनों साथ में, इन्होंने सोचा कि ये बहुत वेल्दी है बट फाइनेंशियली नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे थे ये। इनके जो भी दोस्त है जिनके साथ ये गए हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, they might have showed that they are very wealthy, but no, things are not going great between them because they aren't wealthy as they have shown their self to them. So I see that they're struggling and juggling in the relationship is not going good, there is lots of ups and downs that they're facing, and now finally they want to move out from this situation. कुछ लोगों ने शायद मूव ऑन कर लिए होंगे, बट कुछ लोग अभी भी स्टक है, कंफ्यूज्ड है कि उनको छोड़ के आपके पास आएंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ठीक है, उनको पता है बहुत ऑब्स्टेकल्स है सामने, पता नहीं कैसे क्लियर करेंगे। इधर मूव ऑन भी आधा हो चुके हैं, उधर आने के लिए भी समझ नहीं रहे, तो बीच में अटके हैं बहुत लोग इधर। ठीक है, और ये ज़्यादातर मेरे को लगता है अर्थ एंड वाटर साइंस वाले लोग हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स टुवर्ड्स यू करेंटली, व्हाट आर माय व्यूअर्स पर्सन थॉट्स टुवर्ड्स देम। ये वाला कार्ड ना पिछले पाइल में भी आया था, पाइल 1 में भी आया था, सेम चीज़ कि उनको ना आपके पास आना है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक एंड रिकनसाइल टू यू। ओके, they are now understanding your worth, their value. They went with the लालच of seeing the money, and अभी भुगते वो लोग, इसमें पता है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही इमोशंस मिल रहे हैं, ना ही प्यार मिल रहा है, या कुछ नहीं मिल रहा। जाने के बाद पूरा सुना सुना पड़ गया था उनको, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक, दे वांट टू कम अपोलोजाइज यू। देयर थॉट्स टुवर्ड्स यू इज़ दिस, दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू रिकनसाइल आपके साथ, फिर से उनको रिलेशनशिप में आना है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सॉरी बोलने का भी सोच रहे हैं। सो बट वो श्योर नहीं है कि आपका मतलब रिएक्शन कैसे होगा, क्या आप मतलब उनको फिर से एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। या कुछ लोगों के लिए मेरे को लगता है कि उनको सच बोलना है आपको। ठीक है, जो लोग इधर डाउटिंग वाले सिचुएशन में है ना, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ सच आने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ सच बोलना है उनको इधर कि ऐसे ऐसे हुआ था, उनकी गलती उनको मानना है और उनको कन्फेस करना है। एंड कुछ लोग के लिए जो छोड़ के चले गए थे, मेरे को लगता है इधर कि उनको आना है, बट कहीं ना कहीं होप्स है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज यू रियली लाइक देम फॉर व्हाट दे आर, द वे दे वर काइंड, दे वर जनरस, एंड यू नो दे वर very beautiful and all, you were very attracted to them, so they somewhere think that you will accept them, and they are having a very impulsive thought to just rush and come to you, but वो अभी टाइम ले रहे हैं, वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एंड अभी उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ चुकी है, आपकी वर्थ भी समझ में आ चुकी है कि आप मतलब कितने अच्छे से उनका ध्यान रखते थे। और प्यार में ना सिर्फ पैसे नहीं देखते, कुछ जो लोग आपके वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें, वो भी देखते हैं हम खुश रहने के लिए। तो अभी उनको हर एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट वर दोस थर्ड पर्सन इंटेंशन टुवर्ड्स योर पर्सन। Devilish. Trouble follows them around, tempting, addictive charm. So your person would have been very addictive, very seductive kind of person. And अगर ये इतना ही मतलब आपसे प्यार करते होंगे या कुछ करते होंगे, तो they might have not entertained themselves to somebody else. That other person felt this energy from them, very devilish energy. मतलब कि उनको इनका लुक्स बहुत पसंद आया था, उनको जस्ट एग्जिट प्लान मतलब एंडिंग,
उनको कुछ मतलब इनके साथ लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं देख रहे थे, उनको बस इनको यूज़ करके छोड़ना था बस, मतलब कि ये जैसे हॉटनेस है, ये जैसे इनका लुक्स है, इनका जैसे ये सब है, दे जस्ट वांटेड टू make a use of her body and they just wanted to leave this person. They were not looking for any kind of long term. They just had a plan to just have her, you know, go on a physical intimate with her and then just done, her or he. So now it's all done. This was very short time, this was not a long time at all. And ye secretly hua hoga, and now they want to, it's already ended guys. So इसमें तो इट्स लाइक कि थर्ड पर्सन के साइड से दिस इज ऑल डन, दिस इज फॉर यू गाइज, इट्स डन. I feel that the third party situation among those two is done. Okay, they have already existed themselves from this plan. Okay. But they might still pretend that it's not still done, or oh, see, I told you there is secret past. So I told you that there is something that they want to come and confess to you, and that is what it is, that they want to come and confess what has happened without your knowledge, what mistake they have done, and they're not sure would you accept this or would you throw them out of your situation. They don't want to lose you. They're realizing the mistake, but they don't want to lose you, and I see that you're not going to accept this person again. You thought that they would not do that worse to you, but they have done right now. And you know, this is a very snaky energy. So going behind your back, deceptive swindler. So this person is very deceptive, they are dishonest. Whoever is with you right now is a person who is very dishonest to you, and I've told you that they have you know, want something to say their secrets out and all that. That's what they have done, being dishonest to you. What else in this relationship is going to happen? It was a love triangle that you were going through and you were not even aware of this. Okay, that's what I told you. There was a friend over here. आपके friend ही है जो जिसने किया है, या उनके friend होगा जिसने ये किया है. तो ये love triangle चल रहा था इधर, and third party breeding में इधर आया दूसरा love triangle. पहले फाइल में आया था थर्ड पार्टी कार्ड, अभी आ रहा है लव ट्रायंगल का कार्ड, जो मल्टीपल लवर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कब से था उनको, वो यूज़ कर रहे थे. जो भी आपके पर्सन के दोस्त थे, आपके दोस्त थे, आपके पर्सन को यूज़ कर रहे थे, बिकॉज आप दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे स्टार्टिंग में जब आप लोग आए थे. एंड they were not able to digest this happiness of you guys, and they were a happiness hater. That is what the thing that has made them to take a step and, you know, make a use of your person and destroy your relationship. And your person just acted too dumb like that, and they went to them, they fallen in a trap with them, and then this is what has happened. ये बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के बेस्ट फ्रेंड ही थे, और आपको पता ही नहीं है ये चीज़ आपके पर्सन ने किया है. आपको शक था, बट जैसे आपके पर्सन वाज बीइंग वेरी डिसेप्टिव, dishonest, wearing mask, it did made you prove that this person could be wrong, and now they have learned their lesson. They want to come and be sorry, but let's see. What is the message that this person would like to give from my viewers? Guys, I wish you understand how I feel. तो अभी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ना डिसएग्री ना हो इनके साथ, एंड आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो कैसे फील कर रहे हैं. अभी वो सिंपैथी और पपी फेस वाले यू नो क्यूट पपी फेस बना के आने वाले हैं, ताकि आप उनको समझे जो भी इन्होंने कांड किया है. यू गिव देम दिस, बट नो, निगलेक्टेड. आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड. आपको इनसे क्या चाहिए था? प्यार, लॉयल्टी, हॉनेस्टी, एंड व्हाट डिड दे डू?
they know that they neglected all these things and they failed to give you this. इनको ये भी awareness है और ये बोल भी रहे हैं कि इनको ये जानते हैं कि ये you know they failed, but they still fucking expecting you to understand them. Like, oh my god, these days love absence. I feel like a part of me is missing without you. तो अभी इनको आपके वर्थ, आपके प्रेजेंस का बहुत याद आ रहा है, बहुत समझ पा रहे हैं आपके प्रेजेंस को कि अभी आपके बिना तो वो हर चीज़ एब्सेंस ही लग रहा है उनको. ऐसे लग रहा है कि आपके बिना तो उनकी कुछ ज़िंदगी ही नहीं है, उनके कुछ चांद तारे ही नहीं है, सब कुछ टूट के गिर चुके हैं. सो that's so sad. She got hooked. The person got hooked. And what's the future of this relationship? What's the future of this relationship with you and your person? Let's see what's gonna come ahead for you and your person. बहुत लोगों के लिए ये मंथ एंड तक आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए जून जुलाई तक आपके पर्सन आपको रीच होने वाले हैं. एंड फॉर मेनी ऑफ यू after 6 weeks you can expect your person coming and reaching out to you. Those who are Gemini, those who are Scorpio, those who are Pisces, Cancer, and Scorpio, Pisces, Cancer, Libra, Taurus, Virgo, Leo, yeah, that's all. That's so many only I'm getting. I see that this person is going to definitely come back to you with the love of cups, but they know that there is something, they're gonna keep it secret, and they don't have that fucking audacity to come and say this to you. They are going to take time for this, to express their emotions out, to speak out this truth to you. But they definitely would come to say you that come on, let's just have a new rebirth. चलो आप दोनों फिर से फ्रेश स्टार्ट करते ही रिलेशनशिप में. दोनों इस बार कुछ गलत नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे, जैसे कि आपने कांड किया और उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो ना आपको फॉरगिव करके आपको ले रहे हैं. ऐसे दे विल प्रिटेंड, which is so stupid. And I don't see you guys, really most of you who are watching this, 80% of you, I don't feel that you're going to accept this person back into your life. This person is fucking crap. Okay? पता नहीं क्यों मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है. शायद आपकी एनर्जीज होंगे, या जैसे इन्होंने किया है आपसे छुपा के चीज़ें जो किया है, जो आपके ट्रस्ट रख के आपसे किया है, आपने इतना इनके ऊपर ट्रस्ट किया है, इन्होंने इतना मतलब वो ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के चीज़ें किए हैं, उनको तो सही सज़ा तो मिल ही चुका है उधर. तो लाइक दे जस्ट गॉट यूज्ड एंड थ्रोन लाइक अ थ्रैश. So let's see what guidance is there for you guys regarding to this situation. Spirit guides, please let me know what guidance you would like to give for my present people. Yes. Narcissistic side. That's what I told you. They have got their narcissistic side. So no, nothing. Like silence is all good. You know, it's better not to argue with these people because they're not going to understand. They're going to try to prove themselves right again and again. So narcissistic people, it's better to stay silent with them. उनके साथ stuck in a karmic situation. ये जो भी आपके पार्टनर है, आपके ये फुल टाइम वाले नहीं है, मतलब लॉन्ग टाइम वाले नहीं है, आपके कार्मिक पर्सन है, कार्मिक सिचुएशन में हो आप, तो जो भी ये जो फेस गए आपसे, तो आपको ये एक सीख है, लेसन है, जो लेसन को आपको समझना चाहिए कि ये फेस, ये रिलेशनशिप ने आपको क्या मतलब क्या सिखाया है. तो लर्न योर लेसन and this is your karmic phase. Don't try to accept this person and expect the fact that you're going to marry this person and have a good fairyland. No,
nothing is going to happen. And try to maintain healthy boundaries. जो आपके लिए अभी बहुत बहुत ज़रूरत है is you have to try to maintain healthy boundaries and don't let this person welcome back because they are all karmic. They are nobody to you. They are not your soulmate. They are not your twin flame or whatever that you consider. This person, you will not have a long-term situation though they come back because they have done what they have done. And this is a lesson for you to not blindly trust anybody like that and sense the energies around you. So learn the lesson from this situation, only then this cycle will not repeat. If you don't learn the lesson from this phase, this mistake, this cycle will keep repeating. The person could be somebody else. That's it. So keep healthy boundaries and let go of something that doesn't serve your best and highest good. Learn lesson from this so that you don't be in the same loop. Din, 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 din. Okay. So अगर जिनको भी इधर personal readings चाहिए, you are most welcome to contact me on Insta. Okay, फिलहाल के लिए फॉर्म यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, तो you can reach out to me on Insta for your personal readings with the very affordable prices out there. Okay, and yes, keep supporting me. Do let me know in the comment section if this has resonated to you or not. I would be so grateful for you guys. Love you all. Bye bye. Subscribe me if you have not.